بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میرے چینل پر آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان لوگوں کی جو پچھلے 4.5 سے 5 ماہ کے عرصے میں بہت مشکلات سے گزرے ہیں۔ اب انہیں بہت زیادہ جلد افاقہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ 27 نومبر سے وہ سیارہ زحل جو کہ مشکلات کا باعث بنتا ہے، کاموں کو سست کر دیتا ہے، کافی عرصے یعنی کہ 4.5 مہینے سے الٹی رفتار پر گردش کر رہا تھا، اب اس کی رفتار جو ہوگی وہ سیدھی ہو جائے گی اس کی گردش، اور یہ زندگی کے تمام معاملات میں سنجیدہ اور پائیدار بن جائے گا۔ یہ وقت جن لوگوں نے صبر و تحمل کے ساتھ گزارا ہے، ایمانداری سے محنت کرتے رہے ہیں، تو اب انعام ملنے کا وقت آ چکا ہے۔ اب آپ کی قسمت کے دروازے بھی کھلیں گے، کیونکہ 27 سے 28 نومبر اس دوران جو ہے سیٹرن یعنی کہ سیارہ زحل جو کہ مشکلات والا سیارہ ہے، ٹربلز لے کر آتا ہے، کاموں میں ڈیلیز لے کر آتا ہے، مشکلات لے کر آتا ہے، برج حوت میں یعنی کہ پائسس سائن میں ڈائریکٹ موشن پر آ جائے گا۔ پچھلے 4.5 مہینے سے جن لوگوں کے لیے مشکلات تھیں، کاروبار میں سست روی تھی اور پریشانیاں آ رہی تھیں، کام رک رک کے ہو رہے تھے، جو لوگ باہر کے ملک سفر کرنا چاہ رہے تھے ان کے سفر میں پرابلم آ رہی تھی، ڈاکومنٹیشن میں پرابلم آ رہی تھی، کسی کے ازواجی زندگی میں مسئلے چل رہے تھے، کسی کے شادیوں کے مسئلے چل رہے تھے، یہ سیارہ ایسا ہے جو کہ مسائل پیدا کر دیتا ہے۔ اب یہ سیدھی گردش کرے گا تو آپ کے بہت سارے کام صحیح ہوں گے، بس بات یہ ہے کہ آپ نے ایمانداری سے محنت کی ہوگی تو اب آپ کو اس کے بہت اچھے رزلٹ ملیں گے، کیونکہ سیارہ زحل ایسا سیارہ ہے جو اچھے کام کے اچھے رزلٹ ہی دیتا ہے، صبر سے آزماتا ہے۔ تو اب آپ کے لیے 27 نومبر سے ایک ایسا وقت سٹارٹ ہو رہا ہے جو کہ آپ کے لیے کاموں میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ پچھلے مہینوں کی جو پرابلمز تھیں وہ آپ لوگوں کی اب دور ہو جائیں گی۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ 12 بروج پر اس سیارہ زحل کی سیدھی رفتار سے کیا اثرات ہوں گے، ہر زوڈے کے ہر ہاؤسز کے حوالے سے ڈفرینٹ مختلف قسم کے جو ہے وہ نتائج نکلیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایریز لگن برج حمل والوں کی۔ ایریز برج حمل آپ لوگوں کے یہ 12ویں گھر میں سیدھا ہونے جا رہا ہے، تو آپ کے لیے 4.5 مہینے کے بعد سے آپ کے اب اخراجات میں کمی آپ کو واضح نظر آئے گی۔ آپ کے خرچے بہت بھرپور چل رہے تھے، اب ان میں کمی آئے گی۔ جو لوگ بیمار تھے، پریشان تھے، ہسپتالوں کے چکر لگ رہے تھے، اب ان میں کمی واقع ہوگی۔ جو لوگ بیرون ملک جانا چاہ رہے تھے ان کے کاموں میں آسانیاں بنیں گی، کیریئر میں استحکام آئے گا، فیصلوں میں گہرائی آئے گی۔ کافی زیادہ اندرونی تھکن کے بعد اب آپ مضبوطی سے جو ہے وہ کھڑے ہوں گے، آپ کی صحت میں بہتری آئے گی، اب آپ کو صبر کا پھل ملنا شروع ہوگا۔ بیرون ملک جو بھی خوشخبریاں آنے والی تھیں، ڈیلے کا شکار تھیں، تو اب آپ کو وہ ضرور ملیں گی، صحت میں بہتری معلوم ہوگی، اب آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی، روحانیت سے بھرپور استفادہ آپ لوگ اٹھا سکیں گے۔ ٹورس برج ثور والوں کے 11ویں گھر میں یہ سیدھا ہوگا۔ 11واں گھر سماجی تعلقات، سوشل سرکل، خواہشات پوری ہونے کا گھر ہے۔ جن لوگوں کی خواہشات، امیدیں پوری نہیں ہو رہی تھیں، تو اب ستارہ زحل سیٹرن کی سیدھی چال کی وجہ سے آپ کی یہ حقیقتیں جو ہیں وہ اب رنگ لائیں گی، آپ کی محنت کو پہچان ملے گی، سوشل سرکل بڑھے گا، دوستیاں رنگ لائیں گی، بڑے بہن بھائیوں کی سپورٹ ملے گی، نئی شخصیات سے ملاقات ہوگی اور بھرپور فائدہ آپ اٹھائیں گے۔ نئے ذرائع سے پیسہ کمانے کو ملے گا، کچھ پرانے تعلقات ختم ہو کر بہتر لوگ آپ کی زندگی میں آنے والے ہیں۔ 11واں گھر بڑے فائدے دے گا، اور سیارہ زحل بڑا ستارہ ہے، اور جب یہ سیدھا ہوگا تو آپ کے ریلیشنز میں بہت زیادہ آپ کو جو ہے کامیابیاں ملیں گی، پارٹنرشپ ہوگی، تعلقات آگے بڑھیں گے۔ آپ اگر جاب کرتے ہیں، جاب پروموشن ترقی کے بھرپور چانسز بن رہے ہیں، بزنس کرتے ہیں تو بزنس کے ریلیشن شپ جو ہیں وہ بڑے مضبوط ہوں گے۔ کافی عرصے کے بعد آپ لوگوں کو دوسروں سے جو امیدیں، توقعات ہیں وہ پوری ہونے کا اب وقت آ گیا ہے۔ بات کرتے ہیں جیمنائی برج جوزا والوں کی۔ جیمنائی آپ کے 10ویں گھر پہ سیارہ زحل کی الٹی چال تھی، اور اب
काफ़ी अरसे के बाद आपका करियर संवरने जा रहा है। जिन लोगों के बाय बर्थ ये सैटर्न डायरेक्ट पोजीशन पर था, अब उनके लिए शानदार वक्त होगा। पेशा वराना मकाम पर आपकी जो है वो इनाम का वक्त है। कोई तरक्की, कोई प्रमोशन, इज़्ज़त, कोई नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, नई जॉब मिल सकती है, रुके हुए काम हल होंगे, अब आगे बढ़ने के मौके आपको मिलेंगे। अगर आप डिसिप्लिन्ड रहे हैं और अगर आप मेहनत करते रहे हैं तो अब आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आपके कामों को सराहा जाएगा। जॉब में बड़ी जो है इंक्रीमेंट या सैलरी इंक्रीज़ होने के भी मौके आपको मिलेंगे। जो लोग बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस के हवाले से, करियर के हवाले से, जेमिनी वालों के लिए भरपूर फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ 27 नवंबर के बाद आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। बात करते हैं कैंसर बुर्ज सरतान वालों की। कैंसरियन आपके 9वें घर पर जो है सैटर्न सीधा डायरेक्ट हो रहा है, जो कि आपके अकीदे को, आपके ईमान को, आपकी रूहानियत को मजबूत करेगा। पिछले कुछ 4.5 महीने से आप बहुत परेशान थे, आपके दिल में वसवसे वहम थे अपने अकीदे, अपने मज़हब को लेकर। कुछ आप परेशानियों में थे, आपके इल्म में उस तरह इजाफ़ा नहीं हो पा रहा था, तो अब आपका अकीदा मजबूत होगा, इल्म में बसीरत मिलेगी। बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। आला तालीम के हवाले से राहें खुलेंगी, या बाहर के मुल्क जाकर आप तालीम हासिल कर पाएंगे। वो स्टूडेंट जो बाहर के मुल्क एडमिशन लेना चाह रहे थे, अब उनके कामों में फिर से तेज़ रफ्तारी आ जाएगी। पिछले दिनों जो रुकावटें थीं आपके बैरून मुल्क सफ़र में या एडमिशन के हवाले से, तो वो अब पूरी होंगी। इमिग्रेशन के हवाले से कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। बाहर के मुल्क सफ़र कर पाएंगे, लंबे ट्रैवल्स हो पाएंगे आप लोगों के। इस टाइम पर लॉटरी जैकपॉट से भी आप भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि 9वां घर खुशकिस्मती का घर है। किस्मत से आप अब भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। पिछले दिनों जो आपकी किस्मत आपका उस तरह साथ नहीं दे पा रही थी, कामों में मुश्किलात आ रही थी, तो अब आपके हर तरह के कामों में आप लोग लकी रहने वाले हैं कैंसेरियन। तो बुर्ज असद की बात करें, आपके 8वें घर में स्यारा ज़ोहल की चाल अब सीधी होगी। यहाँ पर आपके वरासती मामलात में बड़ी बेहतरी आएगी। वरासत में जायदाद में कोई हिस्सा था तो अब आपको मिल जाएगा। शराकत दारियों के मामलात बेहतर होंगे। ज़िंदगी से वो खौफ और वसवसे ख़त्म होंगे। दिल में जो परेशानियाँ थी, गम थे, उदासी थी, वो ख़त्म होगी। अब आपका यकीन बदलेगा, ख़ुद पर आप काबू पाएंगे, कामयाबी मिलेगी, छुपे हुए राज आपको मिलेंगे, छुपा हुआ ख़जाना आपको मिल सकता है। ये वक्त आपको अब बहुत सारी चीज़ों से रोशनास करवाएगा। रूहानियत में आपके इजाफा होगा। इस टाइम अगर आप जो है सब्र व तहम्मुल के साथ अगर आपने ये वक्त गुजारा है तो अब आपको भरपूर फ़ायदे मिलेंगे। और अगर आपने लड़ाई झगड़े या 2 नंबरी से काम किए हुए तो फिर आपको उसका रिज़ल्ट उल्टा भी मिल सकता है। अगर आपने तरीके से पॉजिटिविटी से ये वक्त 4.5 महीने का गुजारा है तो अब आपको भरपूर फ़ायदे लियो लगन वालों को ज़रूर मिलेंगे। अब बात करते हैं विर्गो बुर्ज सुमला के, जो कि 7वें घर में सोहल की उल्टी चाल थी। सैटर्न उल्टी चाल पर था, जो कि आपके मामलात, जो ज़वाजी ज़िंदगी के मामलात, मियाँ बीवी के मामलात में खटाई में पड़ गए थे, अब उनके मामलात बड़े बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप पार्टनरशिप पर कोई काम करते थे, शराकती कारोबार करते थे, तो उन मामलात में अब आपको सुकून मिलेगा। आजमाइशों के बाद अब आपका सुकून आने जा रहा है। 4.5 महीने का जो अरसा था, आपने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल गुजारा होगा अपनी ज़वाजी ज़िंदगी में या अपने शराकती कारोबार में, तो अब चीज़ें बड़ी बेहतर होंगी। वो रिश्ते जो सच्चाई पर बने थे तो वो मज़बूत रहेंगे। जहाँ पर आप एक दूसरे को डॉच कर रहे थे या चीट कर रहे थे तो वो रिश्ते ख़त्म भी होंगे, गलत फहमियाँ ख़त्म होंगी, मोहब्बत में हकीकत पसंदी आ जाएगी। वो ताल्लुकात जो एक दूसरे को धोखा दही पे बन रहे थे, चाहे वो बिज़नेस के हवाले से हों, चाहे वो शादी के हवाले से हों, तो वो अब अपने एक एंडिंग लेवल पर आ सकते हैं। या तो वो बहुत अच्छे चलेंगे या फिर उनमें ख़ात्मा भी हो सकता है। नया पार्टनर भी मिल सकता है। जो लोग शादी के हवाले से परेशान थे, उनकी शादी के हवाले से कोई अच्छा बेहतरीन पार्टनर भी आप विर्गो वालों को मिलेगा।
लिब्रा बुर्ज मेज़ान। लिब्रा आप लोगों के 6th हाउस में सयारा ज़ोहल की रफ्तार अब सीधी हो जाएगी, यानी कि आपके जो डेली के मामलात थे, सेहत में बेहतरी आएगी। जो परेशानियां चल रही थी, सेहत ख़राब थी पिछले कुछ महीनों से, तो अब वो सेहत बेहतरी आएगी। जिस्मानी ज़हनी तवाज़ुन बहाल होगा, कामों में ज़िम्मेदारियां बढ़ेंगी, आदतों की तब्दीली बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। जो लोग कर्ज़ के हवाले से परेशान थे, पैसा चाहिए था, तो अब उनके कर्ज़े के मसाइल हल होंगे, पैसा मिल सकेगा उन लोगों को, उनके कर्ज़े अप्रूव हो सकते हैं। और जो लोग कर्ज़ा उतारना चाह रहे थे, उनको पैसा आएगा और वो अपने लोन जो है वो पे ऑफ कर सकेंगे। आपके लिए परेशानियां दूर होंगी। लिब्रा जॉब के हवाले से काफ़ी अरसे से जो लोग परेशान थे, उनके जॉब के मामलात बेहतर होंगे। नई जॉब का हसूल भी लिब्रा वालों को मिल सकता है। आप लोगों की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेहतर होंगी, सेहत में बेहतरी आएगी, पुरानी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा, नया नॉलेज मिल सकता है। तो इस वक्त जिन लोगों ने सब्र तहम्मुल से टाइम गुजारा है, उनके लिए इनामात का वक्त आ गया है। बात करते हैं स्कॉर्पियो लगन बुर्जे अकरब वालों की। स्कॉर्पियंस आप लोगों का 5वां घर, जहां पर सैटर्न सीधा होने जा रहा है। आपकी लव लाइफ में कामयाबियां, क्रिएटिविटी में कामयाबियां, औलाद के मामलात में कामयाबियां अब आपको जो है वो मिलने जा रही हैं। बेहतरीन वक्त शुरू होगा आपकी लव लाइफ में। अगर कोई प्रॉब्लम चल रहे थे कुछ अरसे से, तो वो प्रॉब्लम दूर होंगे। अब आपकी अंदर की सलाहियतें बाहर आएंगी, लोग आपकी क्रिएटिविटी को देखकर रश करेंगे। जिन लोगों को औलाद के हवाले से कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो आपकी हल होंगी। जो लोग औलाद चाहते हैं, उनको कंसीव करने में अब आसानियां होंगी, क्योंकि सयारा ज़ोहल परेशानियां पैदा कर रहा था काफ़ी अरसे से। तो अब आज जिनके बाय बर्थ डायरेक्ट है सैटर्न, तो अब उनको भरपूर फ़ायदे मिलेंगे, दिल के ज़ख्म भरने लगेंगे। अपनी सलाहियतों पर बस यकीन रखें, किस्मत भरपूर आपका साथ देगी। अगर आपने कोई लॉटरी लेके रखी है और काफ़ी अरसे से नहीं खुली, कोई प्राइज़ बॉन्ड लेके रखा है, वो नहीं लग रहा था, तो अब से इंशाल्लाह आपकी किस्मत भरपूर साथ देगी। स्कॉर्पियन लगन वालों, बुर्ज अकरब वालों के लिए। सेगिटेरियस बुर्ज कॉस सेगिटेरियस सैटर्न आपके 4th हाउस, यानी कि आपके घर, ख़ानदान, ज़ाती सुकून वाले मामलात में इस्तेकाम लेकर आएगा, क्योंकि इसकी चाल हो गई है सीधी। घर के पुराने झगड़े होंगे ख़त्म, नया अमन कायम होगा। जायदाद हो या मकान से मुतालिक कोई फ़ैसला हो, कोई गाड़ी ख़रीदनी है, कोई घर चेंज करना है, तो अब आपके लिए ये सब कुछ मुमकिन होगा। पिछले कुछ अरसे से जो परेशानियां आपके घर में आ रही थी, ख़ानदान में आ रही थी, कोई चपकलिश चल रही थी, आपस के लड़ाई झगड़े तंग कर रहे थे, वालदा की सेहत ख़राब थी, तो अब आपके कामों में आसानियाँ आएंगी। वालदा के साथ काफ़ी अच्छा टाइम गुजारेंगे, घर का सुकून मिलेगा, घर में मेहमानों की आमदोरफ़्त रहेगी, घर में कोई इवेंट आ सकता है, पुराने झगड़े ख़त्म हो सकते हैं, प्रॉपर्टी के मामलात में बड़ी कामयाबी मिल सकती है। जो लोग रियल स्टेट से जुड़े हैं, उनके मामलात बड़े बेहतरीन हो जाएंगे, कोई अच्छी डील बन सकती है। जो लोग काफ़ी अरसे से घर या गाड़ी चेंज करना चाह रहे थे, या मेंटेनेंस करवाना चाह रहे थे, मुरम्मतें करवाना चाह रहे थे, अब उनको 28 नवंबर के बाद बहुत अच्छा टाइम मिलेगा, पैसा भी खूब आएगा और आप इन चीज़ों पर अपना पैसा खर्च भी करेंगे। आपका करियर भी बेहतरीन होने वाला है। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन सयारा ज़ोहल आपके 3rd हाउस, आपका अपना रूलिंग प्लैनेट तीसरे घर में आपको ताकतवर बनाएगा। आपकी कम्युनिकेशन बेहतरीन होगी, बोलने में वज़न होगा, बात में वज़न होगा, लोग आपसे इम्प्रेस होंगे, आपके जो अल्फाज हैं वो लोगों के दिल पर गुजरेंगे। सोच समझकर ये वक्त आपने गुजारना है। मंसूबा साजी बेहतरीन होगी तो आप कामयाब होंगे। किस्मत आपके अल्फाज में ताकत डालेगी, कम्युनिकेशन बेहतरीन होगी, सफ़र के भरपूर मौके मिलेंगे। ज़िंदगी में छोटे बड़े सफ़र ज़रूर आपके आएंगे जो कि आपको फ़ायदा भी दिलाएंगे। जो लोग मीडिया से रिलेटेड हैं, जो बोलते हैं, जो लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं, जिनका काम बोलना, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करना है, तो कैप्रिकॉन लगन वाले आपके अब बोलने के दिन शुरू हो गए हैं, जिसमें आपकी बात मानी सुनी जाएगी। आपके कामों में आसानियाँ रहने वाली हैं।
एक्वेरियस बुर्ज दल्व एक्वेरियस वाले, आप लोगों का भी अपना रूलिंग लॉर्ड है और आपके दूसरे घर पे बैठा है। माली मामलात में इस्तेकाम और ज़िम्मेदारियों का दौर शुरू होने वाला है। काफ़ी अरसे से आपके ख़र्चे बहुत चल रहे थे, फैमिली पर ख़र्चा बहुत चल रहा था, तो अब वो ख़र्चा ख़त्म होगा, पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि आपका जो अपना रूलिंग प्लैनेट है वो अब सीधा गर्दिश करेगा। आपके अंदर खुद एतमादी आएगी, मेहनत का फल आपको मिलेगा, आपकी फैमिली इंक्रीज़ होगी, फैमिली में कोई नया मेंबर ऐड हो सकता है। आप लोगों के माली मामलात बहुत बेहतरीन हो जाएंगे, पैसा खूब आएगा, इन्वेस्टमेंट करेंगे, गोल्ड सिल्वर या डायमंड बाय करेंगे, कोई इन्वेस्टमेंट बड़ी करने वाले हैं, तो ये वक्त आपको पैसों के हवाले से बेहतरीन फ़ायदे एक्वेरियस वालों को देकर जाएगा। इस बुर्ज होत पाइसेस आपके अपने फर्स्ट हाउस पे सैटर्न आया हुआ है और इसकी अब जो रफ्तार है वो सीधी हो जाएगी, सीधा डायरेक्ट मोशन पर फर्स्ट हाउस में। यहाँ आपकी जो ज़िंदगी की सिमत बदल देगा, आपके अंदर जो खौफ था वो अब ख़त्म होगा, ख़ुद एतमादी आएगी, ख़ुद की पहचान आएगी, आपकी पर्सनैलिटी में एक निखार आ जाएगा। इसके अलावा आपके जो अखराजात बहुत अरसे से बढ़ रहे थे वो ख़त्म होंगे। अब आप अपने लिए सोचेंगे, ख़ुद की पहचान करेंगे, रूहानियत में आपके इजाफ़ा होगा, आपकी चीज़ों में जो है वो आपके मामलात में जो है वो बेहतरी महसूस करेंगे। पाइसेस लगन वाले, क्योंकि ये आपके 12वें आपके 11वें घर का मालिक भी है, आपके सोशल सर्कल में एक नाम होगा, आपकी पर्सनैलिटी में एक निखार आएगा। सेहत अगर ख़राब थी तो सेहत बेहतर हो जाएगी। बाकी अल्लाह ताला आपके कामों में आसानियाँ पैदा करेगा, आपकी उलझनें ख़त्म होंगी और आपकी परेशानियाँ दूर होंगी।